Very good afternoon to everyone. I, Shiksha, first year student of DME Media School, welcome you all to the Vibrant India series, episode 44. I also welcome all our viewers who are watching us live on Facebook. Vibrant India series is an initiative of DME Media School for celebrating 75 years of India's independence. This series will be a year-long exercise. As a part of the series, we invite inspiring personalities for online talk, interview, and interaction with our students. The invited personalities for the series are from all walks of life and from all parts of country. And today, our special guest is Miss Kajol Suri, actor, director, writer, and a poetess. We welcome you, ma'am. I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. DME is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by Bar Council of India. The institute offers BBA, BA LLB, BBA LLB, and BAGMC program. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of the industries and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as the school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of schools include BG Varghese Lecture Series, Peer-to-Peer FDP, International Film Festival SIFI, International Conference ICANN, and Vritika, Convention of Media Students. And newly added in the list is VIS, Vibrant India Series. It is our privilege to introduce to you the personality of episode 44 of the VIS. I would like to call Jay Sirohi to introduce our guest for the day. Kajal Suri is a well-known actor, director, author, writer, and poetess. Kajal Suri has directed many theatre plays and have participated in many theatre festivals as director and actress across the country. She has organized many theatre festivals like Vijay Suri National Theatre Festival in Jammu and Kashmir, Young Directors Theatre Festival in Delhi, Jammu Theatre Festival. She was also chosen by the Punjabi Academy Delhi She was also chosen by the Punjabi Academy Delhi among the 5 women directors for Punjabi Women Directors Festival. As an impaneled producer for Doordarshan, she has acted as lead, produced and directed more than 400 TV serials, telefilms, and TV plays for Doordarshan Kashmir. She has written many TV serials, telefilms, documentary for Doordarshan, and stage and radio plays, stories, and features for Akashwani and prestigious newspapers. Her published books include Khwabo Ki Chandni and Kavita Sangraha, for which she has also received Navlekhan Puraskar 2021 by Hindi Sahitya Mandal. Authored a play, Habba Khatun, Bulbule Kashmir. This is the first ever published play written on the life of the first romantic poetess of Kashmir. Besides numerous shows of Habba Khatun, the iconic play has also been invited by Chandigarh Sangeet Nagar Academy on 13th May 2022. She has written the poetry book titled Meadow of Thoughts and play Heer Ranjha. I now request the technical team to show some glimpses from her life. Thank you so much, ma'am, for joining us today. It is indeed an honor to host you. I now request Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to welcome the guest. Thank you, Shiksha. Welcome everybody in episode 44 of Vibrant India series. We launched this digital program on August 9 in 2021 on the anniversary of Quit India movement. This is an initiative of DME Media School, Delhi Metropolitan Education. Vibrant India series is an online series to get inspiration from distinguished personalities. This program has been
conceptualized and created by Professor Ambrish Saxena. Vibrant India series is a tribute to all those people who have made supreme sacrifices for the independence of our motherland. India will be completing 75 years of independence this year. We started celebrations last year only. This program, VIS, has been launched as a part of these celebrations. In this series, 8 personalities from the defense forces have participated in VIS till date. These personalities belong to the Indian Army, Air Force, and BSF. 5 personalities from the education sector comprising education planning, teaching, and research have participated in VIS. 4 personalities from the journalism, broadcasting, and entertainment sector have joined the VIS. 6 personalities from the social sector have participated in VIS. 5 personalities belong to art, theatre, and literature participated in VIS. From the field of law and human rights, we have with us 2 personalities, uh, Jyotika Kalra and Professor Manoj Kumar Sinha. 10 women have participated in VIS, have already mentioned about 6 women working in the social sector, 1 in the Air Force and 1 in human rights. I also want to make a mention of Mr. Indani Singh, a pilot, and Mr. Palvi Fauzdar, an adventure motorcyclist, and Ms. Saloni Sachetli. In VIS, 3 police officers have also participated in VIS because this is a very important series. 2 senior IAS officers have also graced the VIS. And from the other fields, हमारे साथ 4 गेस्ट जुड़े थे जिन्होंने अपने विचारों से स्टूडेंट से बहुत सारी चीजें शेयर की और बहुत सारे विचार साझा किए। और आज एपिसोड 44 में हमारे साथ हैं मिस काजल सूरी, जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत मतलब बोल सकते हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। और इन्होंने थिएटर में, रेडियो में बहुत कुछ काम किया है और वाकई में ये इनका पसंदीदा क्षेत्र भी है। तो मैं वेलकम करती हूँ काजल सूरी जी का इस वाइब्रेंट इंडिया सीरीज में और मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ ये सुनने के लिए। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for listening out the galaxy of experts we have hosted till now in VIS. I now request Dr. Ambrish Saxena, Dean DME Media School and originator and ideator of VIS, to take the program forward. Over to you, sir. Thank you. We have entered into this 44th episode of Vibrant India series, and diverse personalities have been coming to this forum. But then this is one area. If we talk about broadcasting or theater, very few people have appeared in this program. So that was a reason that I invited Kajal Suriji to be part of this program, because the kind of contribution that she has made in broadcasting and in theater, that is phenomenal. And then beyond this, obviously this is her prime focus area. But then when we talk about art, so there can be no such aspect of art which she has not touched upon. And again, beyond that, when this COVID-19 has struck, during this period, she is one person who has grabbed this opportunity to do something new. And she started this online series, which I believe, since I keep on tracking as to who all are there in her program, and she is doing that continuously. And I believe close to 400 episodes of that program, 400 sessions of that program have happened till date, which is really, really a remarkable job that she
she has done, and she has showcased people from all walks of life related to theater, films, acting, and all, to tell about those personalities to the people outside. So I welcome Kajal Suri ji. और जैसा कि हमारा इस पूरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, that from this introductory segment, now we request the guest to narrate his or her journey. So Kajal ji, I will request you in this segment of the program to narrate your own story to the audience here. The purpose behind it, normally many people to whom I have been talking to, they feel कि हम अपनी कहानी कैसे बताएं, लेकिन यहाँ पर जो उसके पीछे पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि जब आप अपनी कहानी खुद बताते हैं तो उसमें जो ऑथेंटिसिटी है, जो ओरिजिनलिटी है, वो अदरवाइज कोई दूसरा बताएगा उस तरह से उस कन्विक्शन के साथ नहीं बता सकता. और उसमें भी anybody in anybody's life journey, like in your journey as well, you would have faced a lot of obstacles, a lot of challenges, and then with your vigor, with your spirit, you would have overcome all those problems. तो जब आप अपनी जर्नी में जिस तरह की चुनौतियों से आप बाहर निकली और जिस तरह से आपने रास्ता बनाया, वहां पर कुछ ऐसा होगा जो यंगर जनरेशन के लिए प्रेरणादायी होगा, इंस्पिरेशनल होगा. तो हम चाहते हैं कि आप अपने वो उस तरह के जो भी आपके अनुभव हैं, जो भी आपके संस्मरण हैं, जो भी एनेक्डोट्स हैं, वो हम सब के साथ साझा करें. उसके बाद अगले सेगमेंट में आई मे बी आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाटएवर you would have shared in this session, and then the session will be open to the students to ask the questions. So here मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ काजल सूरी जी कि from this point you please take the session forward and narrate to us your life journey. गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स रतन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इतना आपने खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया. आई एम रियली थैंकफुल एंड अगेन बहुत शुक्रिया. तो आगाज इस सेशन का मैं अपनी लिखी कविता से करना चाहूँगी, जो ख्वाबों की चांदी मेरा पहला कविता संग्रह था, उसमें मेरी कविता है, उससे मैं इस आगाज करना चाहूँगी. ख्वाबों की रेत पर सागर की लहरें, ख्वाब की रेत पर सागर की लहरें आकर मिटाती रही ख्वाहिशों की चांदनी. आसमान पर चांद सरकता रहा दबे पांव, फिर किसी यकीन का जुगनू चमक पड़ा. इसका ये कविता का से आगाज करने का मकसद ये है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की शिद्दत हो, आप कुछ करना चाहते हो, आपके अंदर यकीन हो कि हाँ हम इस काम को कर सकते हैं, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. और थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, टेलीविजन में बहुत काम किया, आकाशवाणी में काम किया, एज अ जर्नलिस्ट बहुत काम किया. आई वाज द फर्स्ट एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट ऑफ JNK जिसको फ्रीलांस कैटेगरी में एक्रीडेशन कार्ड मिला था. मेरे बाद और मुझसे पहले किसी को नहीं दिया गया ये कार्ड फ्रीलांस कैटेगरी में. तो यही चीजें शो करता है कि आपके अंदर पैशन हो. जैसे कि मैंने पहले कहा, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकते हो. तो मेरा आगाज हुआ 3 साल की उम्र में. मैं थिएटर या टेलीविजन या यूं के उसमें आई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों थिएटर एक्टिविस्ट हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं. और पापा को तो जम्मू कश्मीर में थिएटर का भीष्म पितामह कहा जाता रहा है उनको. तो 3 साल की उम्र में याद आता है मुझे कि हम पापा एक सीरियल कर रहे थे श्रीनगर दूरदर्शन के लिए, डोगरी सीरियल. उसमें उन्हें एक बच्चे की जरूरत थी, तो मैं तब 3 साल की थी. तो उस तरह से मेरी जो एंट्री हुई है दूरदर्शन में, पहले दूरदर्शन में हुई सीरियल जो था डोगरी, और फिर उसी का उन्होंने स्टेज के लिए एडेप्टेशन किया, तो स्टेज पे मेरा आगाज हो गया. और ये जो जर्नी है वो चलती रही. स्टेज के लिए मैं ये कहूँगी, रंगमंच के लिए ये कहूँगी कि रंगमंच मेरे लिए मेडिटेशन है, मेरे लिए इबादत है, बहुत ही जादुई है. इससे बढ़कर मुझे कुछ लगता ही नहीं है. ऊपर वाले से अगर हम कहें ना कि हम पूजा करते हैं, तो रंगमंच मेरे लिए पूजा है. क्योंकि ये चीज़ मैंने बचपन में अपने घर में देखी. हमारे घर में, क्योंकि मम्मी भी थिएटर से जुड़ी हुई है, वो प्रोफेसर रह चुकी हैं, क्लासिकल वोकल में उन्होंने डॉक्टरेट की हुई है, तो प्रोफेसर रही हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में. तो वो हमारे घर में वैसा ही एटमॉस्फेयर था.
महफिलें लगा करती थी संगीत की, रिहर्सल्स हुआ करती थी, नाटकों के स्क्रिप्ट पे डिस्कशन हुआ करती थी। पापा राइटर रहे हैं, उर्दू के जाने माने राइटर रहे हैं वो, और उनकी जो राइटिंग है उस पे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रिसर्च कर रहे हैं अभी भी। तो हमारे घर दत्त भारती जो बड़े बड़े नाम हैं, या पुष्करनाथ टिक्कू जो जम्मू कश्मीर का, इंडिया और पाकिस्तान के उर्दू के जो जाने माने अफसाना निगार हैं, उनमें उनका शुमार होता है, उनमें उनका नाम है। तो हमारे घर इस तरह की महफिल, अर्श सहबाई जो जाने माने शायर रहे हैं, हमारे घर यही, तो उसी एटमॉस्फेयर में मैंने बचपन में अपनी आंख खोली। और मुझे याद है हम लोग कहते हैं कि जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपके अंदर शिद्दत हो, पैशन हो, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। और जब हम थिएटर करते हैं तो थिएटर करने में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन हो। और वो कनेक्शन अगर आपका अपने आप से होगा, उस करेक्टर के साथ होगा, जब आप करेक्टर कर रहे हो, वो कनेक्शन आपका होगा, तभी आपके ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बैठ पाएगा। मुझे याद है कि माँ सुनाती हैं ये वाली बात, तो इस बात ने मुझे, मेरे जहन पे बहुत गहरा असर डाला। पापा और मम्मी की शादी को 15 दिन हुए थे, और उन दिनों कश्मीर में टैगोर हॉल एक अच्छा बहुत फेमस ऑडिटोरियम है। वहाँ पे टैगोर का गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का नाटक कर रहे थे, पापा ने ही डायरेक्ट किया था। और उसका नाम था उत्सर्ग, उसमें मम्मी और पापा दोनों रोल कर रहे थे। तो उसमें जो करेक्टर था, जो इम्पोर्टेंट करेक्टर काम कर रहे थे, उसमें जो मेन करेक्टर था, उसके बाल पूरे बाल्ड होना था उसको। तो तब आप मेकअप के थ्रू भी बाल अपने छुपा सकते थे, लेकिन वो कन्विक्शन की जो बात होती है कि आप अपने आप से उस करेक्टर को कनेक्ट करें, तभी वो आपका जो कनेक्शन है, तभी जो आपका ऑडियंस होगा वो आपके साथ कनेक्ट करेगा। तो पापा ने शो वाले दिन जाके अपने पूरे बाल कटा दिए। जम्मू कश्मीर में बाल कटाना मतलब बहुत सही नहीं माना जाता घरों में। तो मेरे जो दादा थे वो तहसीलदार थे उस वक्त। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने मेरी दादी को कहा, दादी ने माँ को कहा, लेकिन माँ स्टेज से थी इसलिए वो स्टेज को समझ गई। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि उस वक्त सही नहीं माना जाता था बाल कटाना, लेकिन ये वही पैशन था, ये डेडिकेशन थी, ये सिंसियरिटी थी कि थिएटर में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो अपने आप से कनेक्ट, जब तक खुद उस करेक्टर से हम कनेक्ट नहीं हो पाए, तब तक हम ऑडियंस हमारे रोल से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये इस चीज ने मुझ पर बहुत गहरा असर डाला। तो मुझे याद है उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद मैं एक नाटक कर रही थी जम्मू में, जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था। वो था पूर्ण विराम। वो एक स्किज़ोफ्रेनिक करैक्टर था उसमें मेरा। तो वो उस करैक्टर मैं उन दिनों दिल्ली आ गई थी जॉब करने के लिए, मुझे आकाशवाणी में नौकरी मिल गई थी। तो टीवी कम हो गया था मेरा, सीरियल्स कम हो गए थे, सिर्फ स्टेज ही रह गया था। बीच की जर्नी पे भी मैं आऊँगी, लेकिन ये इस वाक़ये के साथ इसको जोड़ना चाहूँगी। तो वो एक स्किज़ोफ्रेनिक कैरेक्टर मैं कर रही थी जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस। वो हर साल एक फेस्टिवल करवाती है, बहुत बड़ा ग्रैंड फेस्टिवल होता है, थिएटर फेस्टिवल। तो उसमें मैंने ये नाटक करना था। ये नाटक करते करते मुझे नहीं पता मैं कब उस कैरेक्टर के अंदर चली गई। और जब जब मेरा हमारा ये शो हुआ टैगोर हॉल, अभिनव थिएटर जम्मू में, जब ये हमारा शो हुआ, तो स्टैंडिंग ओवेशन तो मिला ही, लेकिन उस करैक्टर में जब मैं चली गई तो उससे बाहर निकलने में मुझे थोड़ा-सा वक़्त लगा। तो यहाँ ये है कि एक थिन लाइन होती है, उस थिन लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप क्रॉस कर लो तो आप करैक्टर को जीने लगते हो एकदम से। तो उसके उसके लिए मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और उस कैरेक्टर के लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है उन्होंने दिया था, उस पूर्ण विराम के लिए। विक्रम शर्मा का लिखा हुआ नाटक था वो। तो बीच की जर्नी भी आती हूँ मैं। तो कश्मीर से जो सफ़र शुरू हुआ तो वो चलता रहा। आकाशवाणी रेडियो में बच्चों के प्रोग्राम मैंने शुरू किए, और क्योंकि पापा खुद रेडियो और दूरदर्शन से जुड़े हुए थे, मम्मी खुद दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी। तो जो ज़बान होती है, रेडियो आपको बहुत कुछ सिखा देता है, आकाशवाणी आपको बहुत कुछ सिखा देता है, ख़ास तौर पर अगर आपकी ज़बान की बात हो, आपको आपका जो डिक्शन है, डिक्शन की अगर हम बात करते हैं, तलफ़्फ़ुज़ की जो बात करते हैं, वोकैब्युलरी की बात करते हैं, तो आकाशवाणी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है मुझ पे, कि मेरे डिक्शन को सही करने में। घर का तो एटमॉस्फेयर का तो रहा ही है, लेकिन जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं वो आकाशवाणी ने निखारे हैं, घर में वो निखारा। मैं उन दिनों एक प्रोग्राम किया करती थी कश्मीर में, वादी की आवाज़। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम रहा था वो, रहा है वो। जो बॉर्डर पार जो लोग हैं उनके लिए वो प्रोग्राम था, प्रोपेगेंडा टाइप का, बहुत फेमस प्रोग्राम था वो कश्मीर का, वादी की आवाज़। तो उसमें जो कश्मीर के लेजेंडरी लोग थे, जो जिनको दिग्गज कहा जाता है, उनसे मैंने वो उनके साथ रह के मैंने प्रोग्राम मैं करती रही हूँ, काफ़ी साल मैंने वो प्रोग्राम किया, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा।
जहाँ तक ये होता है कि मेरे सामने जो चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं कि किस तरह की चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ा, तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानूंगी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे घर में वैसा ही एटमॉस्फेयर था। मेरे मम्मी पापा दोनों थिएटर से थे। मम्मी म्यूजिशियन थी, मम्मी गाती थी, बहुत गाती रही हैं। मैंने साइड बाय साइड म्यूजिक की तालीम भी हासिल की। म्यूजिक का जो लाइट वोकल है वो मैं गाती थी, आकाशवाणी में मैंने गाना शुरू किया था। तो लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर आपके अंदर शिद्दत है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पैशन है आपके अंदर किसी चीज को करने की एक शिद्दत है, जुनून, पागलपन, किसी भी चीज को करने के लिए ना वो पागलपन की जरूरत है। आपके लिए कई बार 24 घंटे भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं। आपको मन करता है कि कैसे हम वक्त को खींचे और लंबा कर दें ताकि हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो। अगर शिद्दत हो, अगर आपके लिए आपके पास अगर शिद्दत ना हो तो फिर तो हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। तो ये चीज मैंने अपने घर में अपने पेरेंट्स से सीखी। मुझे याद है कि हम लोग जब मैं जम्मू में आई, जब हम जम्मू में काम करते थे, मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैं एमएससी कर रही थी चाइल्ड साइकोलॉजी में। तो थिएटर तो चल ही रहा था मेरा। तो उन दिनों क्योंकि बहुत हमारा सब्जेक्ट सब कुछ ऐसा था और हमारा फर्स्ट बैच था जम्मू यूनिवर्सिटी में होम साइंस का। तो मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, उस दिन होम साइंस की ही ब्रांच है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में, और हमारा फर्स्ट बैच था। और फर्स्ट बैच होने के नाते इट वॉज वेरी टफ। लेकिन जो थिएटर का जो शिद्दत थी वो हम लोग सुबह 5 बजे, जम्मू में बहुत ठंड हुआ करती थी, तो हम 5 बजे एक मंदिर था वहां पे जाके हम लोग पूरी टीम मिलती थी, हम रिहर्सल्स करते थे। पहले वहां जाके पूरा सफाई करना, जो आपका एम्बियंस उसको साफ करना, अच्छे से काम करना, उसके बाद पूजा वूजा करके हम काम करते थे। और फिर 8:30 बजे थिएटर रिहर्सल करने के बाद हम अपने यूनिवर्सिटी जाते थे। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी, जो थिएटर है वो आपको टीम वर्क सिखा देता है। जब आप थिएटर में हम काम कर रहे होते हैं, रिहर्सल कर रहे होते हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कप ला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, तो वहां जब हम काम करते हैं तो टीम वर्क जो है, ये थिएटर से बढ़कर आप कोई चीज नहीं सिखा सकती। थिएटर में सभी बराबर हैं, चाहे वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो या वो ऑफिसर ना हो, चाहे वो प्रोफेसर हो या स्टूडेंट हो, सब बराबर होते हैं। सब थिएटर एक्टिविस्ट होते हैं, सब काम करने वाले होते हैं। वहां पे आपके जो प्रोफेसर हैं या आपके साथ कोई डॉक्टर है या आईएएस है, कोई भी है, वो भी वही झाड़ू लगा रहा है, या जो एक फ्रेशर है वो भी वही काम कर रहा है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ थिएटर, कि थिएटर आपको ये सिखा देता है। तो उसके बाद मम्मा जो है, मम्मा ने नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर में मम्मी ने बहुत सारे थिएटर प्लेस किए। केरला गई थी मम्मी को, थिएटर डायरी लिखने की बहुत आदत थी। तो उनकी डायरी में मैंने पढ़ा, वो केरला गई थी जब शो करने के लिए, नॉर्थ जोन थिएटर फेस्टिवल था। तो उन्होंने लिखा और उन्होंने मुझे बताया भी कि जब एक रंगकर्मी एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है शो करने के लिए, इस चीज ने भी मुझ पर बहुत इम्पेक्ट डाला। तो जब एक जगह से दूसरी जगह हम शो करने के लिए जाते हैं, तो जो एक रंगकर्मी है वो एक जीवन में बहुत सारे जीवन जी लेता है, क्योंकि वो अलग अलग करेक्टर कर रहा होता है एक ही जीवन में। और जब आप नॉर्थ से साउथ जाओगे, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का कस्टम, वो चीजें आपके अंदर कहीं ना कहीं आ ही जाएंगी जब आप थिएटर फेस्टिवल में काम करोगे। तो ये चीज मैंने भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझा कि थिएटर से जो आपका जो मेंटल होराइजन होता है वो ब्रॉड हो जाता है, आपको चीजें समझने की शक्ति मिल जाती है, आप अनकॉन्शियसली चीजों को लेना शुरू कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो थिएटर सिखाता है, वो आपको धर्मनिरपेक्ष रहना सिखा देता है, आपका जीवन जीने का नजरिया ही बदल के रख देता है। तो ये आपकी जो सोच है वो बदल के रख देता है। जब हम डिफरेंट फॉर्म्स की, जो आर्ट की जो डिफरेंट फॉर्म्स है, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो स्कल्पचर है या पेंटिंग है, उसमें आप अकेले रह के काम करते हो, अकेला, आपको टीम की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब थिएटर करते हैं, ये चीज थिएटर ने सिखाई, तो आपको एक टीम की जरूरत होती है, आप अकेले नहीं कर सकते। और भले ही आप सोलो प्ले कर रहे हो, तब भी आपको एक टीम की जरूरत होती है। तो वो ये चीज थिएटर सिखा देता है। और क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बात है, क्राइसिस मैनेजमेंट थिएटर सिखाता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोविड के टाइम जब जो सेकेंड वेव आई थी, उसमें हम सब बहुत ज्यादा परेशान थे और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा आगे, और सभी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उन दिनों एक तो मैंने वो एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिस तरह से डॉक्टर सक्सेना ने कहा, शख्सियत करके, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम हम लोग बड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं और हमारे पास हमें कुछ है नहीं करने के लिए। तो मैंने अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए जब शख्सियत प्रोग्राम शुरू किया, उससे मैंने तो सीखा ही बहुत सारी चीजें। जो हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज आती हैं, उनसे तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, लेकिन हम मेरे साथ जो फ्रेशर्स थे, जो नए टैलेंट थे, उनको भी एक जीवन जीने का एक नजरिया मिल गया। यही नहीं, हमारा एक नाटक है तांडव, वो बहुत ही खूबसूरत डांस ड्रामा है।
हमने उसी अप्रैल के टाइम जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही थी, तो हमने इसकी ऑनलाइन रिहर्सल शुरू की। और वो ऐसा वक़्त था जब बहुत हमारी जान-पहचान के भी थिएटर के लोग कहीं न कहीं जा ही रहे थे और बहुत डरे हुए थे हम लोग। उस वक़्त जब हम शाम को रात को 9 बजे रिहर्सल के लिए मिलते थे ना ऑनलाइन, उस एक नाटक ने हमें बहुत संबल दिया, बहुत संबल दिया। उससे हमें तभी मैं कहती हूँ कि थिएटर जितने भी थिएटर एक्टिविस्ट हैं, थिएटर करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हाँ, थिएटर बहुत कुछ दे जाता है, अनकॉन्शियसली बहुत कुछ दे जाता है। और सबसे ज़रूरी ये बात है कि थिएटर जो करने वाला इंसान होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाती है कि उसको पढ़ना है और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो पढ़ना, साहित्य को पढ़ना, वर्ल्ड जो लिटरेचर है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पढ़ना, जितना जो प्यास होती है ना पढ़ने की, उसको अपने अंदर जारी रखिएगा, उसको मरने मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं बताती हूँ, हम लोग बहुत छोटे थे, आई थिंक मैं 4th 3rd या 4th में पढ़ती थी। तो हमारे यहाँ ये होता था, अमर चित्र कथाएँ हुआ करती थी उस वक़्त। तो हमारी ये मतलब हमारा ये था ही था कि हमें एक अमर चित्र कथा रोज़ पढ़नी है और फिर रात को पहाड़ों में, मैं पहाड़ से हूँ, कश्मीर से हूँ, तो रात में लाइट ऑफ हो जाती है। लाइट होती नहीं, 1 डेढ़ घंटा लाइट नहीं रहती पहाड़ों में, ये अभी भी है, पहाड़ों में रहता है। तो उस वक़्त जब हम जो दिन को स्कूल से आके जो किताब पढ़ते थे, अमर चित्र कथाएँ एक तो पढ़नी ही पढ़नी होती थी हमें। शाम को मम्मी कह रही थी हमको और हमारी कॉलोनी के जो लोग, बाकी जो बच्चे होते थे, उन सबको इकट्ठा करके, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो या कोई भी अमर चित्र कथा, उसको अनेक्ट करिए। आप उसको जैसा मर्ज़ी अनेक्ट करिए। तो वो चीज़ें उन चीज़ों से ना आपका, उन चीज़ों ने मुझ पे बहुत असर डाला। मेरी नानी गाती रही हैं, तो वो गाने के साथ-साथ हम लोग कनेक्ट करते थे चीज़ों को। तो वो चीज़ आज तक मेरे साथ कहीं न कहीं चल रही है और वहीं से मेरी पढ़ने की आदत शुरू हुई और जो वो अभी आज तक एक जो क्रेव होता है कि नहीं, मुझ में कहीं पे भी हूँ, मेरे हाथ में किताब का होना बहुत ज़रूरी है और अगर मेरे पास किताब नहीं होगी, तो मैं अपने आप को बहुत अधूरा फ़ील करूँगी। तो किताब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास किताबें हो, तो यू कैन नेवर, आप कभी अकेले हो ही नहीं सकते। आप कहीं पे भी, आप फ्लाइट पे हो, कहीं पे भी हो, तो किताब पढ़ने से अंदर, आपके अंदर ज़हन में अपने ऑटोमेटिकली शब्द भरते जाते हैं। अब अगर हम नाटक कर रहे हो, तो इम्प्रोवाइज़ेशन की जब हम बात करते हैं, तो अगर आपके अगर ज़हन में शब्द हों, तो इम्प्रोवाइज़ेशन करने में कोई मुश्किल नहीं होती। लेखन की मैं बात करूँ, तो लेखन भी मेरा ऐसे ही शुरू हुआ। पापा, जिस तरह से मैंने कहा कि राइटर रहे हैं और वो अपने आप को बंद कर देते थे 1-2 महीने के लिए, और फिर जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था नाटक के लिए, किताब के लिए। तो वो अपने आप को बंद करके वो लिखा करते थे। उस वहीं से मेरी शुरुआत हुई। 8th में मैंने रेडियो के लिए, बच्चों के प्रोग्राम के लिए टॉक लिखी थी। शेरवानी, जो शेरवानी जिन्हों बारह जो कबायली हमला हुआ था, उसमें जो हीरो रहे हैं, मोहम्मद मकबूल शेरवानी शेरवानी 19 साल की उम्र में उन्होंने कबायली के हमले से बचाया था कश्मीर को। तो वो अनसंग हीरो की जब हम बात करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, तो उनमें उनका नाम भी है। तो मैंने पहला आर्टिकल आकाशवाणी के लिए वो लिखा, तो पापा ने मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं की। उन्होंने कहा, तुम पढ़ती हो, किताबें पढ़ती हो, तो तुम लिखो, जो लिखोगी वो मैं देख लूंगा कैसे क्या होगा। तो मैंने लिखा, एक ड्राफ्ट लिखा, दूसरा ड्राफ्ट लिखा, तीसरा ड्राफ्ट लिखा, उनको कोई पसंद नहीं आ रहा था। 8वां ड्राफ्ट या 8वां या 9वां ड्राफ्ट होकर तब उन्होंने मेरा वो लिया और उसमें चीज़ें उन्होंने ठीक करने की कोशिश की कि इसको ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो राइटिंग में मेरी वहीं से धीरे-धीरे शुरू हो गई, कहानियाँ लिखना शुरू हो गई मैं। मैं साथ ही साथ मैं भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज़्म कर रही थी। मास्टर्स के साथ-साथ, जो मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रही थी, साथ-साथ मैं भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज़्म भी कर रही थी। तो मैंने जो हमारे जम्मू में एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर है, डेली एक्सेलसियर है, कश्मीर टाइम्स है, तो मैंने उनके लिए आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। वहीं से, क्योंकि पापा भी जर्नलिस्ट रहे हैं, तो वो आर्टिकल तो मैंने इसलिए लिखे क्योंकि वो मेरे अंदर था कि मुझे लिखना है, जो वर्ड्स उनको बाहर निकालना है, जो मेरे आसपास चीजें हो रही हैं। टूरिज्म मेरा मेन फील्ड था, विमेन एंड चिल्ड्रन मेरा मेन फील्ड था, आर्ट मेरा मेन फील्ड था। तो एवरी संडे के जो न्यूज़पेपर, जो संडे एडिशन होता था, उसमें मेरे आर्टिकल्स होते थे। और हम, मेरे साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो आज पीएमओ में उनका एक बड़ा नाम है, वो भी उन दिनों लिखा करते थे, आकाश के न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल लिखा करते थे, तो बहुत खूबसूरत लिखते थे। तो तभी उसी वक़्त मुझे
मेरी राइटिंग को देखते हुए काफी सालों के बाद मुझे एक्रेडिटेशन कार्ड जिसकी मैंने शुरू में ही बात की मुझे मिला था, एंड आई वाज ओनली फीमेल जर्नलिस्ट ऑफ JNK जिसको फ्रीलांस कैटेगरी में मिला था। और साथ ही मुझे वहाँ का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नलिज्म का अवार्ड है, प्रेमनाथ भट्ट यंग जर्नलिस्ट अवार्ड, वो मिला। अवार्ड्स की बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप कुछ कर रहे होते हो तो थोड़ी सी भी अगर आपको मोटिवेशन मिल जाए तो एक बूस्ट मिलता है आपके काम करने को। तो ये करती रही, बहुत सारे सीरियल्स किए दूरदर्शन के लिए, स्पीच बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत सारे सीरियल्स प्रोड्यूस किए दूरदर्शन के लिए। आई वाज एमपैनल प्रोड्यूसर। तो वो एक अलग ही जर्नी रही है उसमें। क्योंकि कश्मीर से हूँ, कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है, तो हमारे ज्यादा आउटडोर हुआ करते थे, लोकेशंस हमारे आउटडोर, हमारे सीरियल्स हुआ करते थे। और वो वक्त था कि जब हम सीरियल्स इतने फेमस हुआ करते थे कि जब हम बाहर जाते थे तो उस वक्त, उस दौरान, ये 90s के करीब की बात है, हमसे ऑटोग्राफ वगैरह लेना लोग, क्योंकि बहुत कश्मीरी सीरियल, कश्मीर के जो सीरियल थे बहुत पॉपुलर हुआ करते थे उस वक्त। तो मुझे याद है कि मैं चंबा में शूट कर रही थी, एक सीरियल था वो शूट कर रही थी। उन्हीं दिनों मुझे लेटर आया कि मुझे आकाशवाणी दिल्ली में जॉब मिल गया है। तो वो मेरा उस वक्त का लास्ट सीरियल था जब मुझे जॉब मिल गया। तो मैं दिल्ली आई और मैंने आकाशवाणी ज्वाइन किया। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड कहूंगी कि मुझे वही नौकरी मिली जो मेरा पैशन रहा है कि मुझे यही करना है। और मैं आकाशवाणी से जुड़ी और बचपन से आकाशवाणी से के साथ काम कर रही थी, दूरदर्शन के साथ जुड़ी हुई थी, दूरदर्शन कश्मीर के साथ मैं अनाउंसर भी रही थी दूरदर्शन के साथ। लेकिन ये सभी चीजें अगर मेरे पेरेंट्स का, जिस तरह से मैंने कहा कि वो दोनों इस फील्ड में थे, उनका नाम रहा है, अगर मेरे अंदर वो पैशन नहीं होता तो शायद मैं भी कहीं कुछ कर नहीं पाती। एक बूस्ट जरूर मिला है, लेकिन चुनौतियां, स्ट्रगल ये करना पड़ा कि मुझे स्ट्रगल, क्योंकि मैं जो मेरा जैसे मैंने कहा, आई वाज ब्लेस्ड कि मुझे जो मैं करना चाहती थी मुझे वही करने को मिला। तो इस बीच जब मैंने जॉब ज्वाइन किया यहाँ, तो मैं थिएटर, मेरा मुझसे सब कुछ छूट गया लेकिन मुझे थिएटर नहीं छूटा। तो मेरा जो लास्ट मैंने किया था, जिसकी मैंने आपसे बात की कि मैं पूर्ण विराम जो नाटक किया था, जिसमें मुझे जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उस वक्त की, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था बेस्ट एक्ट्रेस। तो वो मेरा 8th अवार्ड था। तो ये भी मेरा एक वो बना है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर में कॉन्टिन्यूसली 8 बार अवार्ड लेने के लिए आई वॉज द ओनली वन जिस फीमेल को थिएटर फेस्टिवल में 8 बार अवार्ड मिला। मैंने बहुत सारी किताबें जब लिखी, मैंने बहुत नाटक लिखे, किताबें लिखी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं इनको पब्लिश कराऊं, कभी मेरे जहन में नहीं आया। कोविड के टाइम जब हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, तो उस वक्त टाइम भी था हमारे पास, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। मैंने अपनी पुरानी चीजें निकाली, किताबें निकाली, उनको फिर से रीड पढ़ना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर प्रताप सहगल, जो जाने माने साहित्यकार है, एक बड़ा नाम है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास, तुम नाटक लिख रही हो, तुम कविताएं लिखती हो, तो ये बहुत जरूरी है उनको पब्लिश करवाना। उससे पहले मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ पब्लिश कराऊंगी तो मेरी अपनी कोई चीज, अपनी जो मेरी पर्सनल चीज है वो सब लोगों के सामने आ जाएगी। तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं उनको कभी पब्लिश कराऊंगी। लेकिन इसका मैं पूरा श्रेय डॉक्टर प्रताप सहगल को देती हूँ कि उनकी इंस्पिरेशन से, डॉक्टर शशि सहगल की इंस्पिरेशन से मेरी जो पहली किताब है ख्वाबों की चांदनी, जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला, जम्मू कश्मीर जो हिंदी साहित्य मंडल है उन्होंने अवार्ड दिया, तो ये लिखा। उसके बाद मेरी दूसरी किताब आई थी मीडो ऑफ थॉट्स, वो इंग्लिश पोइट्रीज थे उसमें, वो पब्लिश हुई। और हब्बा खातून उसके बाद मेरे साथ ही साथ मैंने हब्बा खातून भी, ये किताबें मैंने पहले लिखी थी, कभी पब्लिश नहीं करवाई थी। हब्बा खातून वाज द फर्स्ट रोमांटिक पोइट्रेस ऑफ कश्मीर। और अब फिर हीर रांझा मेरा भी लेटेस्ट आया है, अभी एक और किताब आने वाली है। तो जिस तरह से मैं कहती हूँ कि थिएटर इज मेडिटेशन, एंड जो राइटिंग है, राइटिंग इज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। और जो काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनके लिए वक्त बहुत कम पड़ जाता है कई बार। तो यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जब मैं जम्मू कश्मीर जब मैं आकाशवाणी दिल्ली मैंने ज्वाइन किया उस वक्त, क्योंकि मैं कश्मीर से में थी और मैं दिल्ली आके भी पहली बार दिल्ली आई थी मैं, और दिल्ली आके भी मैं ढूंढती थी यहाँ पे चिनार के पेड़ और डल लेक और बाकी चीजें नहीं है। लेकिन यहाँ आके मैंने जब आकाशवाणी अवार्ड होता है हमारा, उसके लिए मैंने एक फीचर बनाया था, प्रेम कसम आस्था का संगीत, जिसमें पंडित भजन सोपोरी जी, पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी, उन्होंने उसमें म्यूजिक दिया था। और पंडित भजन सोपोरी जी ने लल्लेश्वरी पे ऑलरेडी, इससे पहले लल्लेश्वरी पे वो एक राग भी बना चुके थे। तो मेरे जो फीचर, उसका नाम था प्रेम कसूर आस्था का संगीत। तो उस फीचर को नेशनल इंटीग्रेशन के अंडर आकाशवाणी एनुअल अवार्ड भी मिला।
तो ये जो सफर है ये चल रहा है, मुश्किलें आती हैं, आदमी कई बार गिर जाता है, लेकिन गिर के संभलना बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आप ऑनेस्टी से कोई काम कर रहे हो, आप सिंसियरिटी से काम कर रहे हो, तो क्योंकि मैंने कहा थिएटर इबादत है, या कोई भी आर्ट फील्ड है वो इबादत है। अगर आपके अंदर छल कपट नहीं है, आपका जो दिल है वो बिल्कुल स्लेट की तरह है, क्लीन क्लीन स्लेट की तरह है, कि जो भी अच्छी चीज है आप उसको लो, तो कभी भी आप मार नहीं खा सकते, कभी भी गिर नहीं सकते। जिस तरह से मैंने कहा कि मैं कई बार गिरी हूँ, कई बार इतनी चुनौतियां आई हैं, कई बार जाने अनजाने आई हैं, जब आप काम कर रहे होते हो कई बार आ जाती, क्राइसिस आ जाते हैं कि उनसे कैसे निपटना है। लेकिन फिर भी अगर आप सिंसियरिटी से काम कर रहे हो, डेडिकेशन से काम कर रहे हो, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो यही मैं सबको कहना चाहूंगी। जी, धन्यवाद काजल जी। आपने मुझे लगता नहीं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा है जो आपसे छूटा हो। आपने लगभग सारी ही विधाओं में काम किया है, म्यूजिक से लेके और पुस्तक लेखन तक। और आपके पास इतने इतने आयाम है आपके व्यक्तित्व के, जहाँ पर बहुत सारी चीजों से हमें और ज्यादा समझने का और जानने का मौका मिला। लेकिन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, चूंकि आप रेडियो में अब तो काफी लंबे अरसे से काम कर रही हैं, मतलब पहले बाहर रह के एज आर्टिस्ट काम करती थी, बट अब तो वहाँ आप नियमित रूप से जॉब कर रही हैं, और आपने बहुत तरह के प्रोग्राम्स वहाँ पे प्रोड्यूस किए होंगे इतने लंबे समय में। तो अगर आप हमें ये बताना चाहें कि रेडियो में, मतलब आकाशवाणी में, आपने किस किस तरह के प्रोग्राम बनाए, किस तरह की चीजें की, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे स्टूडेंट से भी है। क्योंकि हमारे, आप पहले भी चूंकि आई हैं इनके ओरिएंटेशन के प्रोग्राम में, तो इनका रेडियो एज ए सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें हैं। तो इनको शायद वहां से आपने जो काम किया है वो जानकर कुछ ऐसा डायरेक्शन मिलेगा कि किस तरह की चीजें रेडियो में है, क्या संभावनाएं हैं, और किस तरह के प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, कैसे थोड़ा अन्य माध्यमों की, अन्य मीडियम के मुकाबले किस तरह से और बेटर तरह की चीजें रेडियो में हो सकती हैं। अगर आप कुछ इस बारे में बताना चाहिए। मैंने जो रेडियो में काम किया था, जैसे से मैंने कहा कि मैं जब जॉब आकाशवाणी में जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, तो क्योंकि मैं अनाउंसर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि प्रोग्राम प्रेजेंट करना, एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो मैं जॉब यहाँ एक जो मेरा था यहाँ पे, जो मैं ड्रामा देखती रही हूँ, तो उसके देख रही हूँ, तो मैं साथ साथ एज आरजे में एफएम रेनबो पे मैंने काम कर पे भी मैंने शोज किए, लेकिन उसके लिए भी मुझे एज ए स्टाफ मेंबर भी मुझे ऑडिशन देना पड़ा, क्योंकि रेडियो में जब हम काम करते हैं तो ऑडिशन देना बहुत जरूरी होता है। और ऑडिशन देने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है, अगर कोई भी आकाशवाणी में आना चाहे, चाहे वो नाटक का ऑडिशन देना चाहे, चाहे वो एफएम रेनबो पे ऑडिशन देना चाहे, या न्यूज रीडर बनना चाहे, उसको ऑडिशन कैजुअल न्यूज रीडर बनना चाहे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, सबसे जरूरी जो चीज है वो एक तो आपका मेंटल हॉरिजन, आपके यहाँ पे वर्ड्स होने चाहिए। उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहती हूँ कि पढ़ना बहुत जरूरी है। आप अपनी किताबें तो पढ़ते ही हैं, साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी है, आपके यहाँ शब्दों का भंडार होना बहुत जरूरी है। ये तो सबसे जरूरी बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो डिक्शन है, वो बहुत सही होना चाहिए, डिक्शन पे काम जरूर होना चाहिए। और वॉइस का जो उतार चढ़ाव है, वॉइस जो मॉड्यूलेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये तीन चीजें किसी में हो जाए तो किसी भी ऑडिशन में वो क्लियर कर सकता है आकाशवाणी का। और फिर आकाशवाणी आपको बहुत कुछ दे जाता है। आकाशवाणी के लिए मैं ये कहूंगी कि आकाशवाणी तो डिक्शन की यूनिवर्सिटी है, आपको इतना कुछ सिखा देती है ना कि आप कहीं पे भी, जिस तरह से थिएटर की मैंने बात की, उसी तरह आकाशवाणी ने भी मुझे बहुत कुछ किया। और लेकिन आपने जितना, आपकी जर्नी रही थिएटर से लेके और ब्रॉडकास्टिंग तक, उसमें आपने चूंकि म्यूजिक के इंटरेस्ट की बात की और आपकी मदर भी म्यूजिक थी, लेकिन वो शायद कहीं आपका छूट गया, या उसको भी आपने जारी रखा म्यूजिक? नहीं, मैंने बहुत सारी म्यूजिकल प्रोडक्शंस की हैं। नाटक नाटक की बात, स्टेज पे भी मैंने बहुत सारी म्यूजिकल प्रोडक्शंस की हैं। मैंने हब्बा खातून जो किया, वो तो कश्मीर की फर्स्ट वो जो रोमांटिक पोइट्रेस थी, तो वो पूरा म्यूजिकल प्रोडक्शन था। आकाशवाणी में भी जब हमने किया था उसको इनवाइटेड ऑडियंस के सामने, तो दैट वाज ए म्यूजिकल प्रोडक्शन। फिर इसको जो ब्रॉडकास्ट हुआ, दैट वाज ए म्यूजिकल प्रोडक्शन। तो म्यूजिक तो साथ साथ चलता ही रहा है, क्योंकि मैं मैंने म्यूजिक में जो ग्रेजुएशन की थी अलग साइड अलग से, तो म्यूजिक तो साथ साथ मेरे हर नाटक में, चाहे वो थिएटर हो चाहे वो आकाशवाणी के जो नाटक, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं म्यूजिक को साथ लेकर चलूं। तो ये प्रॉपर जो एक म्यूजिक सेक्शन है उसमें मैं कभी नहीं रही, लेकिन ड्रामा में मैंने म्यूजिक को लाने की बहुत कोशिश की, चाहे थिएटर हो चाहे वो आकाशवाणी के नाटक।
आपने थिएटर के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी चीजें बताई, हम सब जानते हैं, मैं भी इतना थिएटर करता रहा हूँ, लेकिन आपने कि ने जिस तरह से उसको एनालाइज किया वो बहुत ही खूबसूरत था। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जो एक कलेक्टिव स्पिरिट की बात है, एक टीम वर्क की बात है जो थिएटर से सीखा जा सकता है, और किस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट की आपने बात की, कैसे कि खराब स्थितियों में भी आप थिएटर से, और एक जो और आपने बात की कि थिएटर हमें धर्मनिरपेक्षता सिखाता है, जिस पर आज के जमाने में काफी तरह के सवाल भी हैं। तो अगर मैं आपसे ये और जानना चाहूँ कि जब आप थिएटर करती हैं, किसी भी नाटक का चुनाव करती हैं स्टेज पे करने के लिए, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी लाइट में आप कोई फैसला करते हैं कि किस तरह का नाटक करना है और कहाँ करना है, किसके लिए करना है? तो क्या इन सवालों पे को आप काम करती हैं, और अगर करती हैं तो किस तरह से निर्णय लेती हैं? मैं नाटक का मेरा एक कोशिश यही रहती है, या तो मैं फीमेल ओरिएंटेड करूं नाटक, या फोक बेस्ड नाटक करूं, या वो नाटक लूं जिसमें म्यूजिक और डांस का कॉम्बिनेशन हो। तो मैंने एक काया प्ले किया था, और काया वो विमेन ओरिएंटेड प्ले है, और काफी शोज काफी यूनिवर्सिटीज में भी हो चुके हैं और काफी जगह हो चुके हैं। वो भी डांस डांस फॉर्म में ही था। वो एक लेडी की कहानी है, जो काया जो जो सेंट्रल करेक्टर है, किस तरह से गांव में जो उसके अगेंस्ट चीजें होती हैं, उन चीजों से किस तरह से उठकर वो डिप्टी कलेक्टर बनकर वापस उसी गांव में आती है जहां उसके साथ बहुत बुरा हुआ होता है। ये पूरी जर्नी दिखाई गई है, ये बहुत सक्सेसफुल शोज किए थे। उसके बाद मैंने हब्बा खातून लिया। हब्बा खातून जिस तरह से मैंने बताया कि वो पूरा डांस है, कश्मीर का फोक है, उसमें पूरा रोफ है, शादियां कैसे, शादी में क्या होता है, पूरा फोक है कश्मीर का। हीर रांझा के मैंने 25 शोज किए हैं। हीर रांझा में भी पूरा पंजाब का फोक लेने की कोशिश की है। अभी मेरा लल्लेश्वरी है नाटक, जो अभी 16 जुलाई को हो रहा है, एक आवाज मोहब्बत की एलटीजी में, जो उसको संगीत नाटक अकादमी ने सपोर्ट किया है। तो वो कश्मीर की जो फर्स्ट सूफी पोइटर्स थी, लल्लेश्वरी, 14th सेंचुरी में जो हुई थी, उनके उनके ऊपर वो उनके जो वाक हैं, उनकी कविताओं को वाक कहा जाता है, उनकी वाकों पे वो नाटक बेस्ड है, और वो नाटक भी मैंने ही लिखा है। और हब्बा खातून जो थी वो फर्स्ट रोमांटिक पोइटर्स थी कश्मीर की। तो उनके जो कविताएं हैं, उनको वसुन कहा जाता है, वो 16th सेंचुरी में हुई थी। तो इन चीजों पे काम करके मेरी यही कोशिश होती है कि मैं वो चीजें लूं जिन पे काम बहुत कम किया गया है। चाहे मैं वर्कशॉप में काम कर रहा हूँ, तो मैंने अभी सलोमी करवाया था। सलोमी ऑस्कर वाइल्ड का लिखा हुआ वो है, नाटक है, वो किया मैंने। उस पर भी कभी काम नहीं हुआ। मैंने ब्लैक होल उद्भ्रांत जी, एक जाने माने साहित्यकार हैं, उनका काव्य नाटक था जिसकी तुलना अंधा युग से की जाती है। वो एनवायरमेंट पे बेस्ड बहुत टफ नाटक था, उस पर मैंने काम किया। किंग लेयर शेक्सपियर का है, उस पर मैंने बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट जो कभी स्टेज पे आए ही नहीं, उनको लेकर मैंने काम किया। रोमियो जूलियट मैंने उन लोगों के साथ किया जो कभी नहीं आए। रश्मि रथी मेरा फेवरेट है, महाकाव्य है। वो बहुत मुश्किल है अपने आप में, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जिनके बिल्कुल एक कहते हैं ना क्लीन स्लेट है, उनके ऊपर चीजें डालने की जरूरत है, उनके साथ मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो समझते हैं चीजों को, और वो एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन बन के तैयार होके आ जाती है। उसी तरह रोमियो जूलियट मैंने किया, या मिर्जा साहिबा, या अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे बहुत सारे नाटक हैं, या लोरेका का है ब्लड वेडिंग है। ये सभी मैंने फ्रेश स्टूडेंट्स के साथ किया जो कभी स्टेज पे आए नहीं, और उनके साथ काम करके एक बड़ी क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है। और फिर प्रोडक्शन का जो तैयार होकर ऑडियंस के सामने आती है, जब ऑडियंस से रिस्पॉन्स मिलता है, उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं होता। जी। तो आपका इतना बड़ा कैनवस है कि मतलब हर तरह के आपने नाटक किए, लेकिन हाँ, जो आपने बताया वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय, कि आपने उन एरियाज में वेंचर करने की कोशिश की जो थोड़ा सा अनटच्ड हैं। और जैसे हम आज के समय में अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, अपनी हेरिटेज की बात करते हैं, तो आपने 14th सेंचुरी और 16th सेंचुरी तक जाके भी उस तरह के नाटक किए। लेकिन एक चीज जो मुझे क्लिक की, वो कि आप वीमेन सेंट्रिक, चूंकि आपने शुरू में बताया कि जब आप पढ़ाई कर रही थी तो वीमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर आप पढ़ रही थी, काम कर रही थी, तो जो वीमेन सेंट्रिक आपकी अप्रोच है, वो उसके पीछे क्या कोई खास उद्देश्य है? आप मतलब जो महिलाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, या उनको लेके करने वाली चीजें, या उनको टारगेट करके कोई कंटेंट देने की चीजें, उसके बारे में आपका क्या खास सोच है? सोच तो खास नहीं है, क्योंकि मैं बीइंग ए विमेन, तो मेरा यही रहता है कि विमेन इश्यूज को लेकर काम करूं। और जैसे मैंने एक नाटक जो भारतेंदु जो साहित्य कला परिषद करवाती है, भारतेंदु नाट्य उत्सव, एक बहुत बड़ा नाट्य उत्सव होता है जिसमें दिल्ली के बेस्ट नाटक होते हैं, उनका चयन किया जाता है।
उसमें मेरा एक नाटक सिलेक्ट हुआ था अर्धकाव्य, वो भी विमेन पे, एक औरत की कहानी पे बेस्ड था कि किस तरह से वो पारिवारिक जो उसकी जो वो उसके जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको, उनका निर्वाह वो किस तरह करती है, और अपने ऊपर सारी चीजें लेते हुए, और किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेते हैं, शी पुट सर फुट डाउन कि मुझे ये चीजें नहीं करनी। तो ये एक कहते हैं ना, रंगमंच समाज का आईना है। तो वो चीजें अगर स्टेज पे सामने वाला देखे, ऑडियंस देखे, तो उसको पता लग जाता है कि ये चीजें समाज में हो रही हैं, और अभी भी हो रही है समाज में एक फीमेल के साथ, और इन ये चीजें कैसे सही होंगी, क्वेश्चन मार्क छूट जाता है उसके सामने, आता है ऑडियंस के सामने, और कहीं ना कहीं उन चीजों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो मेरा यही रहता है कि जितने भी फीमेल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उनको मैं कोशिश करूं वन बाय वन, धीरे धीरे उनको मैं ऑडियंस के सामने लेकर आऊं। काजल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और काफी सारे लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं। तो शिक्षा, आप क्या पूछना चाहेंगी काजल जी से? तो जैसे मैंने आपका नाटक देखा था, उसमें जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये थी कि जब अगर मैं उस नाटक को आंख बंद करके भी सिर्फ देखती ना, तो उसमें आवाज में ही इतने एक्सप्रेशंस थे कि वो नाटक मुझे बस सुन के भी वो पूरा दिखाई दे सकता था। तो जैसे कि रेडियो ड्रामा में होता ही है, तो मैम मैं वो एक्सप्रेशन जानना चाहती हूँ कि आपने किस तरह से उस पर वर्कआउट किया, और वो एक्सप्रेशन हम लोग भी कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी बातों मेरा तो खैर, मैं तो ये कहूंगी कि इतने सालों से नाटक कर रही हूँ, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी आप कुछ कर रहे हो, नाटक की बात में खास तौर पे, चाहे आकाशवाणी के लिए आप नाटक करना चाहिए, स्टेज के लिए नाटक करना चाहिए, जो बहुत जरूरी चीज होती है वो होती है वॉइस मॉड्यूलेशन और आपका डिक्शन। उसके लिए आप चीजें देखिए, अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए, नाटक सुनिए। अगर हम स्टेज पे एक नाटक कर रहे हैं, तो हम तुगलक कर रहे हैं स्टेज पे, तुगलक जो है पूरा उर्दू, उसका जो तुगलक का करेक्टर कर रहा है उसका उर्दू का डिक्शन होना चाहिए, उर्दू का डिक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके वॉइस में वैसे वो जो तुगलक का एक एटीट्यूड होना चाहिए, वो होना चाहिए। या फिर हम फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर अभिज्ञान शकुंतलम कर रहे हैं, तो उसमें जो दुष्यंत का करेक्टर कर रहा है, उसके जो वॉइस है उसमें एक राजा का तो है ही, लेकिन हिंदी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीजें तभी आएंगी जब आप पढ़ोगे, चीजों को देखोगे, और अच्छे लोगों को सुनोगे, अच्छे नाटक सुनोगे, और कोशिश करोगे कि जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, जो आपका डिक्शन है, वो आपका ठीक होता जाए। वो तभी ठीक होगा जब आप चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को, जो चाहे अच्छा थिएटर है, चाहे अच्छे सुनने वाले हैं, अच्छी कविताएं हैं, आजकल तो ऑनलाइन कितनी चीजें हैं, कितने लोगों को आप सुन सकते हैं, उनको उनको देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे उतार चढ़ाव हो रहा है। तो ये चीज आपको फिर हेल्प करेगी आगे, कहीं भी नाटक में, या फिर आकाशवाणी के नाटकों से आप जुड़ना चाहिए, या किसी भी प्रोग्राम से आप जुड़ना चाहिए, वहां आपकी चीजें हेल्प करेंगी। जी, शशांक कुमार, अपना सवाल पूछो। मैम, जैसे कि मैंने भी आपका नाटक जो है वो वहाँ पे AIR में देखा था, दुल्हनिया उजियारा। तो उसमें मैंने ये देखा था कि बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर रहा आपका। तो हम ये थिएटर में सीखते हैं कि जो आवाज होनी चाहिए वो बहुत ही ज्यादा लाउड होनी चाहिए। इमोशनल कैरेक्टर को कैसे प्ले करें कि वहाँ पे, क्योंकि ऑटोमेटिक आवाज जो है वो धीरे हो ही जाती है इमोशनल कैरेक्टर को, तो उसको कैसे प्ले कर सकते हैं हम? एक तो लाउड विस्पर होता है, अब चीखना नहीं होता आपको, स्टेज पे चीखेंगे, चीखना और बोलना, जोर से बोलना, उन दोनों में डिफरेंस होता है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, योगा की एक्सरसाइज होती है, जिससे पेट से आवाज निकालने की आप कोशिश करें। तो अगर आप चीख चीख के बोलेंगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगी। और आप जोर से बोलेंगे, अगर आप पेट से आवाज निकाल के बोलेंगे, तो उसमें वो चीज आ जाती है, चाहे कॉमेडी हो, चाहे वो इंटेंस प्ले हो, चाहे वो इमोशनल प्ले हो, तो वो अपने आप अकॉर्डिंग टू रोल वो आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं अगेन दोबारा बोलूंगी कि आपको चीखना नहीं है, आपको जोर से बोलना है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप चीख चीख के, चीखने से एक तो आपके गले पे असर पड़ेगा और वो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा। तो योगा की कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो आप करिए, रेगुलर करिए, प्राणायाम करिए, वो बहुत हेल्प करेगा आपकी वॉइस को सुधारने में। जी, और निखिल गुप्ता सवाल पूछना चाहते हैं काजल जी आपसे। निखिल, अपना सवाल पूछो। मैम, मेरा नाम निखिल गुप्ता है, और मैं ही वो एक जो हूँ, जो आपको बताया गया था कि आपके जो एक्ट मैंने भी लाइव देखा, और मैं ही वो पहला था जो लगातार पूरे नाटक को देखते हुए लगातार रोता रहा, क्योंकि आपका जो नाटक था वो इतना, मैं अपने आप से कनेक्ट कर पा रहा था, और इतना इमोशनल था कि मैं मतलब लगातार रोता रहा।
तो हाँ। आपका पहली बार मैं आपको देख रहा था और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा आपसे ये सवाल है कि कोई भी एक मेन कैरेक्टर, एक आर्टिस्ट होता है, उसके साथ एक दूसरा लीड कैरेक्टर होता है, तो उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस मिलाना, अपनी टाइमिंग मैच करना, अपने इमोशनल सीन्स में कंफर्टेबल होना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? क्योंकि मैं भी कॉलेज में अभी एक्ट कर रहा हूँ, तो जो अपना कैरेक्टर होता है उसके साथ इमोशनल कनेक्ट करना और शब्दों को मिलाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। तो आपके हिसाब से कैसे हम उसमें कंफर्टेबल हो सकते हैं, और क्या वो मतलब डिफिकल्ट है या आसान है? ये डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगी, ये एक प्रोसेस होता है। जैसे मैंने कहा कि कनेक्शन बहुत जरूरी है। जब आप एक्ट कर रहे हो तो स्टेज पे पहले तो उस करेक्टर से आपको कनेक्ट होना है, जो भी आप करेक्टर कर रहे हो। जैसे मैं वो करेक्टर कर रही थी सावित्री का, अगर मैं वहां पे सिर्फ काजल रहती तो वो इतना कनेक्शन ऑडियंस का बनता मेरे साथ, ना मैं अपने आप उस करेक्टर से कनेक्ट कर पाती। तो कनेक्शन बहुत जरूरी है, और कनेक्शन को करने के लिए पहले आपको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना है। हम कहते हैं ना, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसी तरह जो थिएटर दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब आप एक एक्ट कर रहे हो तो आपको जो करेक्टर है उसको ऑब्जर्व करना है कि अगर ये करेक्टर कर रही हूँ मैं या मैं कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा होगा। इसकी चीजें देखो, बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी देखने के लिए, आप रियल लाइफ में देख देख सकते हो कि ये क्या करेक्टर है। तो उस करेक्टर को, उस जो प्रोसेस है, उस जो जर्नी है उस करेक्टर तक पहुंचने की, उस करेक्टर को पहुंचने की जर्नी को आपको करना पड़ेगा, उस करेक्टर तक पहुंचना पड़ेगा, उस करेक्टर को अपने अंदर लेना पड़ेगा। जब आप उस करेक्टर को अपने अंदर लोगे, जियोगे, तो फिर आप वहां पे वो, मैं वहां पे काजल ही रहूंगी, मैं वहां पे सावित्री बन जाऊंगी। और जब मैं सावित्री बन गई हूँ तो मुझे मेरे साथ जो प्रमोद का करेक्टर कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। फिर वो ऑडियंस अपने आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक्शन रिएक्शन होता है, मेरे साथ वाला जो एक्टर है उसका और मेरा जो एक्शन रिएक्शन होता है वो टोटल मिलकर एक अच्छी प्रोडक्शन बनाते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पहले उस करेक्टर से अपने आप को कनेक्ट कीजिए, फिर आप अपने साथ को एक्टर से कनेक्ट करेंगे, फिर आप ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट करेंगे। और जय सरोही काजल जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जय, अपना सवाल पूछो। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आपने प्लेस लिखे हैं एंड आपने करे भी हैं। तो मैम, नॉर्मली अगर हम जैसे कविता वगैरह लिखना चाहे तो वो ज्यादातर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद लिख लेते हैं। बट अगर कोई प्ले लिखना स्टार्ट करना चाहे तो वो समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करे एंड सीन्स को कैसे कनेक्ट करे। बिकॉज अगर कोई, जैसे हम अपने लेवल पे लिखते हैं तो बहुत चाइल्डिश लगता है और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब लगता है कि पता नहीं कहीं से भी किसी भी सीन को जोड़ दिया है, सिंपल दो चार डायलॉग डाल दिए हैं। तो अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें कि कहाँ से लिखना स्टार्ट करें और किस तरह, ताकि एक इंटरेस्ट है ऑडियंस का भी, एक लगे थोड़ा मैच्योर है कोई भी चीज। आपने कितने नाटक पढ़े हैं? नाटक पढ़े तो नहीं है बट देखे हैं। देखिए, आपका आंसर यहीं पे है कि कुछ लिखने के लिए साहित्य को पढ़ना है। अगर आप नाटक लिखते हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो नाटक जितने हो सके नाटक पढ़िए पहले आप अपने इंडिया के तो प्ले राइट को पढ़िए, उनके नाटक पढ़िए। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी जो नाटक है उनको पढ़िए। अपने आप आपको इस आंसर का सवाल का जवाब मिल जाएगा। नाटक पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है, फिर आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, ये आपने कम से कम काजल जी बहुत अच्छी चीज बताई। यंग लोगों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, शायद आपके सेशन के बाद कुछ आए लोगों को और लोग पढ़ना शुरू करें, बहुत क्योंकि जरूरी है। गुलजार साहब कहते हैं ना, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी से और बड़ी हसरत से देखती हैं वो मुझको। तो वो हसरत निकाल दीजिए। सभी बच्चों को यही कहूंगी कि किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। और आपको जब एक बार पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपके लिए तो बिना किताब के आप रह ही नहीं पाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। एग्जैक्टली तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब ज्योति मिश्रा और है सवाल पूछने के लिए। ज्योति, अपना सवाल पूछो। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, my question is, to what extent can the social media, especially the Facebook, be used in generating inspirational plays for the contemporary theatre and films? लाइव नाटक देखना तो ज्यादा अच्छा रहता ही है। लाइव नाटक से का एक अपना मजा होता है। थिएटर ऑनलाइन जब कोविड के टाइम बहुत हुआ, लेकिन उसका इतना मजा नहीं रहता। बट हाँ, जो फॉरेन के प्लेस हैं जो हम नहीं देख पाते, जो लाइव नहीं देख पाते, शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेस हैं, बाहर आप देख सकते हैं ऑनलाइन। वो देखिए तो काफी इम्पैक्ट हो जाएगा। अगर आप थिएटर से जुड़ना चाहते हैं तो वो आपको काफी आप पे असर डालेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी, अगर आपको थिएटर देखना है तो लाइव थिएटर देखने की कोशिश कीजिएगा। और चलते हैं हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। कोई और स्टूडेंट है जो छूट गया है, जो सवाल पूछना चाहता है? सारे हो गए सर।
अच्छा, ठीक है। तो अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन हुआ, मगर मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपना रिएक्शन देना चाहूँ काजल जी, क्योंकि आपने लगभग सारे एस्पेक्ट को टच किया, और खासतौर से जो सीधी रिलेशनशिप है ऑडियंस के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं इस सेशन में उनके साथ, और चूंकि उन लोगों ने आपका प्ले अभी हाल में देखा था तो वो भी उन बातों को रिलेट कर पाए। और अगर कंक्लूसिवली इफ आई एम आस्क्ड टू मेक ए statement about the session, so I would say the last thing which was being discussed just now, that everybody should develop a habit of reading. This is so essential for everybody, in fact, and particularly for the young people. This is very necessary कि सब लोग पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और थिएटर भी की अगर हम बात करें, चूंकि काजल जी ने थिएटर की काफी बात की, उनका काफी काम थिएटर में है, तो थिएटर में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नाटक मंच पे कर लिया और हमने एक्टिंग कर ली और समझ लिया कि हमने थिएटर सीख लिया। थिएटर को समझने के लिए, थिएटर को करने के लिए न सिर्फ आपको थिएटर के बारे में पढ़ना है, नाटकों के बारे में पढ़ना है, नाटककारों के बारे में पढ़ना है, आपको साहित्य भी पढ़ना है, आपको उपन्यास भी पढ़ना है, आपको कविताएं भी पढ़नी है, इंडियन लिटरेचर भी पढ़ना है, वेस्ट का लिटरेचर भी पढ़ना है, अलग अलग भाषाओं में पढ़ना है। जब आप ये करेंगे तो आपका जो पूरी अप्रोच है उसमें एक डेप्थ आएगी, एक समझ आएगी, और उसी के साथ थिएटर किया जा सकता है। थिएटर को आप वैक्यूम में नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है जो हमें इस सेशन से समझ में आया। थिएटर बहुत अच्छी चीज है। डीएमई में भी हम लोग की थिएटर की सोसाइटी है, तो में से काफी सारे लोग उसमें होंगे, लेकिन जब पढ़ाई के साथ थिएटर करोगे तो निश्चित रूप से सारा काम करने का तरीका ही बदल जाएगा, और उससे बाकी सारी वो चीजें हैं जो कि काजल जी ने बताई कि एक टीम स्पिरिट डेवलप होगी, साथ काम करने की जो भावना है, और जो जैसे काजल जी ने एग्जाम्पल दिया कि बहुत सारी ऐसी हमारी विजुअल आर्ट्स हैं जहां हम अकेले रह के काम कर सकते हैं, लेकिन थिएटर जो है वो एक कलेक्टिव आर्ट फॉर्म है और परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमें सबके साथ मिलके ही काम करना है। और एक जो खास बात जो बहुत अपीलिंग थी, जो काजल जी ने कही कि हमें एक पैशन और एक जुनून का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास पैशन नहीं है तो हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, चाहे वो थिएटर की बात करें या आप किसी भी क्षेत्र में। आप चूंकि सारे लोग मीडिया के विद्यार्थी हैं, मीडिया में टीवी से लेके, रेडियो से लेके, डिजिटल से लेके, फिल्म से लेके कहीं भी कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आपके अंदर एक जुनून हो, एक पैशन हो, और आप पूरी शिद्दत के साथ काम करें। और लाइफ को जो कोई भी काम आप कर रहे हैं, और जो काजल जी ने बार बार जिस बात को एम्फेसाइज किया, वो आपके जीवन का अगर हिस्सा बन गया, और जैसे काजल जी ने कहा कि वो मतलब उनकी लाइफ में एक दोनों चीजें एक साथ जुड़ गई कि जो आप करना चाहते हैं उसी तरह की आपको नौकरी मिल जाए, तो उस तरह का काम मिल जाए। और मीडिया में ये पूरी तरह से संभव है, क्योंकि मीडिया जिस तरह का एक क्षेत्र है कि आप मीडिया की पढ़ाई करें, फिर मीडिया में ही काम करें, और मीडिया में रह के आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आपको एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन दे सकता है। आप आर्ट म्यूजिक के साथ जोड़ सकते हैं, आप लेखन के साथ जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस सेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने काजल सूरी जी से सीखी। और काजल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काफी आज जिस तरह के टेक्निकल इश्यूज भी आए उसके बीच में आप जो ये भी एक सीखने की बात है हम सभी को, कितने धैर्य से हम किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं, और लेकिन हम आखिर में उस काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी चीजें हम सबको बताई। धन्यवाद। The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.